Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. Today, we are going to start your new exercise of your chapter number 15, Properties of Triangle. Before starting, first of all, we are going to discuss about exterior angle property of the triangle. So first we have to discuss before starting this exercise your exterior angle property. If a triangle is to be formed just like this, or if we are going to extend of its any side, suppose मैंने इसको ये extend कर दिया and it forms an angle, this angle is equals to the sum of opposite interior angles of the triangle. So this exterior angle is equals to the sum of opposite interior angle. Suppose this one is 50 degree and this one is 70 degree. Therefore, the exterior angle is equals to the sum of these two angles, means 120 degree. This theorem is known as exterior angle property. ठीक है. Second, if in a triangle, if I am going to increase its extend its all the sides just like this one मैंने इसको extend कर दिया, ये extend कर दिया और इसको extend कर दिया, it forms an angle, it forms an angle, it forms an angle. तो या तो आप क्लॉकवाइज लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक ही डायरेक्शन में लेना है आपको, यानी कि एक इधर से ले लिया फिर आपने इधर से एक्सटेंड कर दी सेम डायरेक्शन में. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ व्हेन द एंगल्स आर फॉर्म्ड of this type, this one, so these are the exterior angles of a triangle, or you can say that any polygon. So the property is that the sum of all these exterior angles formed of a polygon is to be 360 डिग्री. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल से सम होता है किसी भी पॉलीगन का, वो 360 के इक्वल होता है. तो वी हैव यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज इन दिस एक्सरसाइज. तो जस्ट लुक हियर. ठीक है. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर. दिस इज अ ट्राइंगल A B C and this point is D. ठीक है. This one is 45 degree, this is 75 degree and this one we don't know. In this figure, the question is said, in the given figure alongside, find the measure of angle ACD. We have to find angle ACD, means ACD, this angle we have to find this one. Some given values are there. Just look here. What are the given values? Angle BAC equals to 75 degree and angle ABC equals to 45 degree. ठीक है. The question is said, ask about the measure of angle ACD. तो अभी समझाया था मैंने by the exterior angle property. तो first I am going to use the property in the triangle ABC by exterior angle property. ठीक है बेटा. शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया से. तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC. So this one is 75 and this one is 45. Now add them. So angle ACD equals to 120 degree. ठीक है बेटा. So this is a angle, the value of angle ACD. Second, similar question is to be there that you have to do it yourself. Question number 3, just look here. है तो ये भी सेम बट थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. इन द क्वेश्चन नंबर 3 we have to find the value of x and y. So just look here how to find, how to solve. Just I am going to draw the figure firstly.
we having a triangle just like this. I have a triangle, a straight line is to be there, A, B and C. This one is D point. This to be X degree, this one is a 32 degree, and this is 65 degree. This one is a Y. So we have to find X and Y. Just look here how to find the angle X and Y. It is very simple. So first of all, I am going to write the given values here. The given values are angle A equals to 32 degree and angle ACD equals to 65 degree. Now we can easily find this value. Just look here, if this one is a line, a straight line, the sum of these two angles is 180 degree. तो इससे ये निकल के आ जाएगा. And x, we know that कि this is exterior angle, तो the sum of these two angles is equals to this one. ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा. तो in this triangle ABC, again by exterior angle property, angle A plus angle B equals to angle ACD. A means 32 degree, B means X degree, and ACD 65 degree. So therefore the value of X is 65 minus 32. So X equals to 33 degree. ठीक है बेटा. Now we can find the value of y by angle sum property or by the linear pair. So we know that y plus 65 equals to 180 degree. Linear pair. Because angles formed on a straight line. Now I am going to subtract this from the 180. So the value of y is y equals to 115 degree. This is the value of y. ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई है. We can easily find the value of y by this. Now come to the next one. An exterior angle of a triangle measures 110 degree and its interior opposite angles are in the ratio 2:3. Find the angles of the triangle. So we have to find the angles of the triangle. हमें रेशियो में दिए हैं, तो whenever it is given the ratio we can assume in the form of just like कि 2:3 है, we can write 2x and 3x. तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के उसको इक्वल रख देंगे हम, और उसमें we can easily find the value of x और उसमें सॉल्व करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमारे सारे ही आंसर्स निकल गए, सारे एंगल इजीली फाइंड हो जाएंगे. ठीक है बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. 5 देख लेते हैं. An exterior angle of a triangle is 100 degree and its interior opposite angles are equal to each other. सेम क्वेश्चन है बेटा, उसमें रेशियो के फॉर्म में दिया था, इसमें दोनों ही एंगल इक्वल है अपोजिट इंटीरियर. तो फर्स्ट यू हैव टू एज्यूम एज x, तो दूसरा भी x हो जाएगा, तो x प्लस एक्स एक्सटीरियर के इक्वल हो जाएंगे. देन वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, जस्ट लुक द क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर. दिस इज द फिगर A, B, C. This one is exterior angle that is 100 degree and the opposite angles, both the angles are equal. मैंने मान लिया कि ये x है तो ये भी x ही होगा. ठीक है, क्योंकि because both the angles are equal. So first I am going to assume the exterior angle. Let opposite interior angle be x degree. Then by exterior angle property
The exterior angle property said that the sum of opposite interior angle of a triangle is equals to the exterior angle. So this is a 2x equals to 100 degree. So x equals to 50 degree. Therefore, each equal एंगल इक्वल्स टू 50 डिग्री. अगर हमें तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, इसमें बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल. तो दो एंगल तो हमारे फाइंड आउट हो गए, मीन्स ये हमारा कितना हो गया बेटा 50 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो 50 डिग्री. बोथ द एंगल शुड बी 50 डिग्री. अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो वी कैन इजिली सब्ट्रैक्ट दिस एंगल फ्रॉम द 180 ड्यू टू लीनियर पेयर एंड वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल. दिस वन इज अ सी. तो वी कैन फाइंड दिस एंगल. अगर मैं इसको वाई एज्यूम कर लेता हूँ तो वी नो डेट y plus 100 equals to 180 degree linear pair. Then y equals to 180 minus 100 80 degree. So this is a value of the last angle. तो आपको तीनों ही एंगल मैंने फाइंड आउट कर दिए हैं. दो एंगल्स ये होंगे, ईच एंगल 50 डिग्री, 50 and 50, and the last one is 80 degree. So these are the three angles. Now come to the sixth one. Just look at the question number 6 of the same exercise. First I am going to draw the figure of this. Question number 6 is in the given figure. So first of all I am going to draw the figure. A straight line is to be there, something like this. This one is A, B, C, D. This one is 40 degree. This one is 45 degree. And this one is 25 degree. ठीक है. The question is that we have to find ACD. ACD. This one X. And second one AED. This is the point E. ये E point है. ठीक है बेटा, छोटा सा पॉइंट है जो ये ई पॉइंट है. तो वी हैव टू फाइंड एंगल AED. हमें ये भी फाइंड करना है, दो एंगल फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड दिस वन. अगर ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया. तो दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू. तो पहले हम इतना फाइंड आउट करते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है. और इन विच ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC. तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACD. दिस वन इज 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ACD. तो देयरफॉर एंगल ACD इक्वल्स टू, एड देम, 5 5 10 0, कैरी 1 और 7, 70 डिग्री. ठीक है बेटा. नाउ कम टू द अदर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल. दिस इज द ट्राइंगल ECD और ये इसका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है. तो दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू. अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो हमने x एज्यूम किया था, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज द सेम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ECD. तो इन ट्राइंगल ECD बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा. तो एंगल ACD प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू एंगल AED. This one is 70 degree plus 40 degree equals to angle AED. Now add them. If I am going to add both the angles, so the angle AED will be 110 degree. तो दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गए बेटा. ये फर्स्ट पार्ट था इसका और दिस वन इज सेकेंड पार्ट. तो बोथ द पार्ट्स हैज बीन सॉल्व्ड. ठीक है. एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट yourself at your home. ठीक है. Now I am going to discuss some
important topic of this chapter, inequalities of the triangle. ठीक है, छोटा सा पार्ट है तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी. ठीक है, इसके आगे का पार्ट है inequalities of the triangle. अब what do you understand by the term inequalities of a triangle? Just look here. The property, some properties are there of the triangles, जो हम समझ लेते हैं वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. वन प्रॉपर्टी इज देयर कि वन इक्वलिटी ट्रायंगल क्या होता है. प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी. अब हमारे पास थ्री साइड्स हैं ए बी सी एंड सी. ठीक है, द प्रॉपर्टी इज डैट कि ऑलवेज जो स्मॉलर साइड्स होंगी या कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा. ठीक है, अगर ये 5 है ये 7 है तो 5 और 7 12, तो इनका सम ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये 8 हो सकती है. 12 से मोर नहीं होगी, इक्वल भी नहीं होगी, ध्यान रखना, इक्वल भी नहीं होती है साइन. इक्वल अगर इक्वल भी नहीं होगा, ऑलवेज द सम इज ग्रेटर, हमेशा सम बड़ा होगा तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, द सम ऑफ टू साइड्स, टू की जगह आप स्मॉलर वर्ड लिख लें ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो स्मॉलर साइड्स होती हैं उन दोनों का सम, द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. अगर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल लाई नहीं कर रही उसमें तो ये ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं करेगा. ठीक है, सेकेंड, ये सम पे था, एक डिफरेंस पे आता है. सपोज अ ट्राइंगल इज टू बी देयर ए बी सी, एक डिफरेंस होता है. तो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड. इट मीन्स अगर मैं दो साइड्स को आपस में माइनस करूं तो ये हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा, छोटा होगा. तो ये दो चीज़ें हैं, आपको इन दोनों चीज़ों को याद रखना है. सम इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब सिंपल सी चीज़ है, ऐसे याद करना है. द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर. ठीक है, अगर मैं इन दोनों को करूं, कितना आ गया 7 माइनस 5 2 आ गया ना, देखो इससे छोटा है, डिफरेंस छोटा है. और सम करूंगा तो सम बड़ा आएगा. अब ऐसे देखें, सम करिए इन दोनों का 13 इससे बड़ा है, डिफरेंस करेंगे 3 से छोटा है, तो डिफरेंस छोटा आएगा सम बड़ा आएगा. बस इतना समझना है. दिस इज कॉल्ड द इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्राइंगल. तो जो हमारी आगे की एक्सरसाइज है दैट इज 15.15C, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ओनली दिस, मतलब इसी पे बेस्ड है पूरी, इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो जो उसका थर्ड एक्सरसाइज 15C है हमारी, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इजी एक्सरसाइज है. ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं आज. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे. तो इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ इसका. द लेंथ ऑफ हु साइड्स आर गिवन. एक ट्राइंगल की साइड्स हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. क्या ये ट्राइंगल फॉर्म होगा? तो आपको दोनों ही प्रॉपर्टीज इसमें देखनी है. सम करिए किन्हीं दो साइड्स का, 1 + 1 कितना गया 2, तो 2 ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड से. इट मीन्स ये एप्लीकेबल है. अब डिफरेंस वाला देखते हैं, 1 - 1 इज लेस देन 1, तो 0, तो ये भी एप्लीकेबल है. मतलब एडिशन वाला भी एप्लीकेबल हो गया, ऐड वाला भी और डिफरेंस वाला भी. इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया बेटा, यस, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, मतलब ट्राइंगल फॉर्म कर जाएगा. ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ें इसमें देखनी, दोनों ही एप्लीकेबल होना चाहिए. सेकंड पार्ट 2 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स. तो पहले मैं सम देखता हूँ करके. 2 + 3 मीन्स 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, मतलब सम बड़ा आना चाहिए. ये तो एप्लीकेबल हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. 3 - 2 इज लेस देन 4, मतलब 1 इज लेस देन 4, ये भी एप्लीकेबल हो गया. इट मीन्स इस फॉर्म में भी क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है. इसमें भी हमारा ट्राइंगल इजीली फॉर्म हो जा रहा है. तो वही आपको चीज़ें देखनी है जिसमें ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो आप उसमें नो लिख देंगे, और जिसमें हो जाएगा उसमें येस कर देंगे. जैसे थर्ड पार्ट है 7 8 सेंटीमीटर्स में बेटा ये 15. इफ़ आई एम गोइंग टू ऐड दैम 7 + 8 ये कितना आ गया 15, और ये भी 15 है. क्या सम इसका बड़ा आया,
नहीं आया। सम इसका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और इक्वल वाली प्रॉपर्टी लाई नहीं करती है, इट ऑलवेज ग्रेटर देन। जब यही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो रही है तब आगे कुछ नहीं देखेंगे आप, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैं डिफरेंस भी करूँगा तो 15 माइनस 8 7 आएगा, और ये भी 7 के इक्वल आ रहा है। डिफरेंस छोटा आना चाहिए और सम बड़ा आना चाहिए, ठीक है, तो ये 7 से छोटा नहीं आया, ये भी चीज़ गलत हो गई हमारी। तो थर्ड पार्ट आप लिखेंगे नो, कि ट्राइंगल इज नॉट फॉर्म्ड। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसके सब यही पार्ट्स हैं, ऐसे ही आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, 3 भी यही है, 4 भी यही है, एंड द रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं मैक्सिमम पार्ट जो ऐसे ही है। इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के सारे सेम है, दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ एट योर होम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इसका 1 तो हो गया, 2 भी सेम है, 3 भी वही है, 4 देखते हैं। AM is a median of the triangle ABC. If we have given a triangle ABC and AM is the median, this one is the AM. AM is a median. Median क्या होता है बेटा? Which divides the side into two parts. इस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। We have to prove that, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, ठीक है, AM से डबल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम 2 ट्राइंगल्स का यूज करेंगे, एक ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है। सम की बात हो रही है तो हम एडिशन वाला जो इक्वलिटीज है, इनइक्वलिटीज, वो यूज करते हैं इसके अंदर हम। जस्ट लुक हियर हाउ टू सॉल्व दिस वन। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज इन ट्राइंगल AMB। क्या था, द सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड, तो AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM, इसको 1 मान के नहीं छोड़ दें। सेकेंड इन ट्राइंगल दिस वन, आगे वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AMC, दिस वन, इधर वाला ट्राइंगल लेंगे, पहले इधर वाला लिया था ना, अब इधर वाला ले रहे हैं। तो AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ ऐड देम, ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM प्लस AM। AB ये रहा हमारा। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज 2 वैल्यूज, BM एंड MC, BM और ये MC। इफ आई एम गोइंग टू ऐड बोथ द वैल्यूज, दोनों ऐड होने के बाद क्या बन जाएंगी, ये BC बना देंगे, और प्लस AC या फिर CA, एक ही बात है, AC बोल रहे हैं या CA बोल रहे हैं, बात एक ही है, इज ग्रेटर देन AM प्लस AM, सॉरी AB है, AM प्लस AM ट्वाइस ऑफ AM। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि द सम ऑफ दीज 3 साइड्स इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द मीडियन, वो चीज़ हमारी प्रूव होके आ गई है, ठीक है। तो आगे भी ऐसे ही सम्स हैं, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ एट योर होम, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर, ठीक है, व्हाट थिंग्स वी हैव टू लर्न स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, तो 15C इज completed and the remaining questions you have to do it yourself at your home, and if you are facing any type of query, any problem, then we will discuss these queries in your Zoom class. Thank you.